شمون نے تیز نظروں سے بازور اپنے سامنے کھڑے ان تین نوجوانوں کو دیکھا جو بظاہر جسمانی طور پر اس سے بھی بہت بھرپور نظر آ رہے تھے۔ 3 مقابلوں میں سے کم 2 مقابلے جیتنے تھے، پھر سجنا تھا اس کے سر سرداری کا تاج۔ ہار جانے کی صورت میں وہ سرداری سے ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا تھا، اور اسے اپنی جان بہت عزیز تھی، کیونکہ اگر وہ ختم ہو گیا تو ایوانا کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ شیلا کو بھی ختم کر دیتے۔ پہلے مقابلے میں اسے ان تینوں سے باری باری لڑنا تھا اور ان تینوں نوجوانوں میں سے 2 کو لازمی ہرانا تھا۔ شمون بآسانی ان سب کی آنکھوں میں سرداری کے حصول کی چمک دیکھ سکتا تھا۔ سب کے حلق میں عجیب و غریب حرارتیں نکل رہی تھیں۔ اچانک شاکوپا نے اپنی جگہ سنبھال کر طبلہ جھنگ بجانے کا اشارہ دیا۔ آنکھوں پر گرتے بارش کے پانی کو انگلیوں سے جھٹک کر شمون بھی گڑایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بلے کے روپ میں لوٹ آیا۔ اب ان تینوں نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ بھرپور جسامت والا شخص چند قدم آگے بڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بلے کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر وہ خونی کھیل شروع ہو گیا۔ آس پاس قبیلے کے دیگر لوگ بلیوں اور انسانی شکلوں میں کھڑے شور مچا رہے تھے۔ تقریباً سب ہی شمون کے خلاف تھے، ایک تو اس لیے کہ وہ ایک آدم زاد کی اولاد تھا، دوم اس نے ایک انسان کے لیے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں، مگر کچھ لوگ اب بھی شمون کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، شاید انہیں یقین تھا کہ شمون اپنی سرداری کی لاج رکھ لے گا، سو ایسے میں شمون سے دشمنی مناسب نہیں تھی۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی، دونوں کے جسم سے گاڑھا سیاہ سال نکل کر گر رہا تھا۔ بارش کا پانی جسمانی تکلیف کو اور بڑھاوا دے رہا تھا۔ ہار ماننے کو دونوں میں سے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن وہ دوسرا بلّہ مطمئن تھا، جبکہ شمون کے ذہن میں کچھ بوجھ تھا، شیلا کے مل کر بھی نہ ملنے کا بوجھ، ماں کے قتل کا بوجھ، اور سرداری اور جان کے خطرے کا بوجھ۔ لیکن یہی بوجھ اسے تحریک بھی دے رہا تھا، لڑنے کی اور جیت جانے کی۔ لڑائی جاری رہی، خون بہتا رہا، گھراٹیں اونچی ہوتی رہیں، اور پھر شمون نے اپنے نوکیلے دانتوں سے جگڑ کر خود سے 2 گنا وزن رکھنے والے بلے کو بھنبوڑ کر رکھ دیا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی، شمون سکون سے الٹے قدم پیچھے ہوتا اب خود کو زبان سے چاٹ رہا تھا، جبکہ دوسرے بلے کو میدان سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک فتح نے اس کا جوش و جذبہ 100 گنا زیادہ بڑھا دیا تھا، اور پھر دوسرا اور اس کے بعد تیسرا مقابلہ بھی ہو گیا۔ اسے 2 جیتنے تھے، وہ تینوں جیت گیا۔ پہلی منزل اس نے عبور کر لی تھی، اور اب اپنا ادھیڑا ہوا زخمی وجود لیے تن کر شاکوپا کے آگے کھڑا تھا۔ شاکوپا کو شمون کی اکڑ اور غرور اچھا نہیں لگ رہا تھا، ساتھ ہی شمون کی آنکھوں میں تمسخر بھی تھا۔ مجھ سے چھینیں گے سرداری آپ، مجھے دیں گے سزا۔ شاکوپا نے گہری سانس بھر کر شمون کو واپس حویلی جانے کو کہا، ساتھ ہی کل بستی واپس آنے کو بھی کہا، دوسرے امتحان کے لیے۔ جتاتی ہوئی ایک نگاہ سب پر ڈال کر وہ فتح کی سی چال چلتا بستی سے نکل گیا۔ جب اس کی گاڑی حویلی کی گراج میں رکی تب صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر اس کے زخم دیکھ کر چونک سکتے تھے۔ جگہ جگہ کسی جانور کے پنجوں کے نشانات واضح تھے۔ شروع میں تکلیف اتنی نہیں تھی، لیکن اب زخم سخت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ جب لڑکھڑاتا ہوا وہ حویلی میں داخل ہوا تب ہر طرف خاموشی تھی۔ یقیناً تھکا دینے والی رات کے بعد اب سب اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ شیلا کہاں تھی؟ شمون کے کمرے میں اس وقت حل ہونا بالکل ممکن نہیں تھا۔ اچانک ذہن میں جھمکا ہوا تو وہ کڑھاتا ہوا گیسٹ روم میں گھس گیا۔ توقع کے مطابق وہ وہیں تھی، بستر پر اوندھی پڑی وہ غلاف میں چھپی تھی۔ ترچھا سا چہرہ نکل رہا تھا، لیکن اب موسم بدل چکا تھا۔ رات گئے اور صبح سویرے ٹھٹھا دینے والی سردی ہوتی تھی، لیکن سارا دن جان نکالنے والی گرمی ہوتی تھی۔ خیر، شیلا کے قریب جا کر وہ لب بھیجے کچھ دیر تک اسے تکتا رہا، اور کچھ سکون میں تھی وہ، اس بات سے انجان کہ اس کے اسی سکون کے لیے وہ ساری رات کتنی تکلیف میں گزار کر آیا تھا۔ وہ ساری تکلیف تو ایک طرف، وہ اس بے خبر سی لڑکی کے لیے اپنی ماں کی جان
ले चुका था। और शमून की असलियत जानने के बाद क्या शैला उसकी इन कुर्बानियों का एहसास करेगी? बिल्कुल नहीं। उसे एक बिल्ला, आसेब, दरिंदा कहकर दूर हो जाएगी। लेकिन क्या शमून उसे दूर जाने दे सकता था? जाहिर है नहीं। शमून अपनी कड़ाहों पर जब्त करते हुए शैला के करीब ही बैठ गया। फिर अपनी 2 उंगलियों के पूरों से वो आहिस्ता आहिस्ता शैला का मुलायम गाल सहलाने लगा। तुम इंसान बेवफा होते हो। मेरी सारी कुर्बानियां भुलाकर तुम सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ सकती हो कि मैं तुम्हारी तरह का आम इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह का आम इंसान नहीं हूँ। हाँ हाँ। शमून झुककर शैला के कान पर से बाल हटाकर आहिस्तगी से बोला, और फिर मध्यम सा हंसकर पीछे हो गया, क्योंकि शैला नींद से बेदार हो रही थी। शैला ने जब अपनी आंखें खोली तो कुछ देर तक वो गायब दिमागी से शमून का जख्मी वजूद देखती रही। फिर अचानक उछलकर उठ बैठी। आपको क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? कब आया आप? किसने किया? मैं तैमूर अंकल को बुलाती हूँ। सारे सवालात और गिले शिकवे भुलाए वो उस वक्त सख्त हिरासा हो रही थी। बेड से उतर कर वो जाने लगी जब शमून ने उसकी कलाई पकड़कर उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। इस तरह के एक फासला अब भी कायम था। शैला अपनी जगह साख्त रह गई। उसकी नजरें शमून के कीचड़ में लिथड़े बूटों से उठ ही नहीं सकी। शमून लब भेज कर कुछ देर तक शैला के चेहरे को एक अटक देखता रहा। फिर उसकी कलाई छोड़कर चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। हर बात के लिए अपने तैमूर अंकल की तरफ देखना बंद करो। बहुत ख्याल रख लिया उन्होंने मेरा और तुम्हारा। अब तुम रखो मेरा और मैं तुम्हारा रखूंगा। इस जगह देखो, फर्स्ट एंड बॉक्स होगा। बहके बहके लहजे में कहते कहते अचानक वो शैला से दूर हुआ और स्पार्ट अंदाज में टेबल की दराज की तरफ इशारा किया। शैला उसके रंग बदलने पर हक्का धक्का होती टेबल की तरफ बढ़ गई। शमून ठंडी सांस भरकर रह गया। मजबूरी इस कदर थी। फर्स्ट एंड बॉक्स निकालकर वो बेड पर रखा तो शमून बात लेने का कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर कपड़े लेने के लिए अपने कमरे में जाने का ख्याल आया, जिसे जानकर शैला ने खुद जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जख्मी था और ऐसे में सीढ़ियाँ चढ़ना मुमकिन नहीं था। ओके, तुम्हें डर लग रहा होगा, मैं चला जाऊंगा, शमून नरमी से बोला। मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। सामने कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं डरती मैं। शैला का लहजा मजबूत था, जिस पर शमून अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। सामने हो तो डर जाओगी? जी। शैला शान शिकार का साफ गोई से बोली। फिर उसे इंतजार करने का कहकर कमरे से निकल गई और पीछे शमून लब भेजे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब शैला शमून के कपड़े लेकर कमरे में आई तब वो नहाने जा चुका था। कपड़े बेड पर रखकर वो गुजरी शब की तमाम सूरत-हाल को जहन में दोहराने लगी। बिल्लियां तो खैर एक खौफनाक हकीकत थी, लेकिन शमून के रवैये के पीछे क्या कहानी थी, ये शैला समझने से कासिर थी। अभी वो उंगलियां मरोड़ती हुई शमून के अजीबो गरीब रवैये का कोई सिरा ढूंढने में मगन थी, जब बाथरूम से कुछ गिरने की काफी ऊंची आवाज उभरी। शैला तेजी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। शमून! हल्की सी दस्तक देकर शैला ने पुकारा, लेकिन जवाब न दीदा। शमून, आप ठीक हैं? प्लीज कोई तो जवाब दें। शैला का दिल घबराने लगा। उसको अंदाजा भी नहीं हुआ था कि उसकी आवाज में नमी घुल गई थी। शम उसकी अगली पुकार अधूरी रह गई जब शमून ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन उसकी स्याह आंखें आधी खुली सी थी, जिसे बहुत मुश्किल से खोल रखी हो। तुमने बाथ गाउन लपेट रखा था और उस वक्त शैला ने बतूर उसका चेहरा देखा। जख्म तो थे ही, साथ ही पूरे चेहरे पर जद्दी घुली थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। शैला ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन इस वक्त शमून के हवासों पर खून की प्यास सवार थी। उसने शैला को यूं पीछे धकेला जैसे शैला को अछूत की बीमारी हो। शैला अचानक दूर धकेले जाने पर जोर से दीवार से जा लगी। शैला की आंखों में नमी चमकने लगी। वो समझने से काजिर थी क्यों कर रहा था शमून उसके साथ ऐसा। हालांकि बहुत बार वो उसकी बेरौनक रहने वाली आंखों में अपने लिए एक खास जज्बा चमकते देख चुकी थी। फिर क्या वजह थी आखिर? शमून ने गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठकर शैला के चेहरे को देखा। उसके खौफजदा तासरात पर दिल और बोझल हो गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। यूं ही बैठे बैठे वो चकराते सर के साथ शैला के चेहरे पर फैले हैजान मिलाल के तासर देखते देखते अचानक पीछे को गिर गया। शैला तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, काफी बार उसे पुकारा, लेकिन जवाब न मिलने पर तनवीर अफरीदी को बुलाने भाग गई। तनवीर अफरीदी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नकाहत
खूबसूरत सा लब सख्ती से भेजे नफ़ी में सर हिलाता रहा। उसका रवैया इन्हें हैरान और परेशान कर रहा था। वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस चिढ़ा हुआ सा इशारों से जवाब दे रहा था। दर हकीकत शमून इस वक्त अपनी प्यास पर जब्त कर रहा था। दर हकीकत शमून उस वक्त अपनी प्यास पर जब्त कर रहा था। शमून बेटा, तुम्हें भाई आप जाएं यहाँ से, और शैला को भी ले जाएं, प्लीज़ जाएं, अकेला छोड़ें मुझे, प्लीज़ भाई। उसका जब्त अचानक टूटा तो वो इनकी बात हटकर हलक फाड़ कर दहाड़ा था। शैला ने बेसाख्त कानों पर हाथ रख लिया, जबकि चेहरा लट्ठी की मान सफ़ेद हो गया था। तैमूर अफरीदी खामोशी से शैला को साथ लिए बाहर निकलने लगे, लेकिन जाते जाते अचानक मुड़कर भाई की मोहब्बत से मजबूर पूछ बैठे, तुम उस बिल्ली को फेंकने गए थे? कहीं तुम्हारे इस हाल के पीछे वो बिल्लियां ही तो नहीं? पहले तो शमून कुछ देर तक संजीदगी से इन्हें देखता रहा, फिर मुंह बनाकर सार साबत में हिलाकर चेहरा मोड़ लिया। ठंडी सांस भरकर तैमूर अफरीदी ने शैला को फिर से चलने का इशारा दिया, जो इसके साथ ही रुक गई थी और भीगी भीगी उलझी नजरों से शमून को देख रही थी। कमरे से निकलने से पहले शैला ने एक बार फिर शमून की तरफ देखा। उसी वक्त शमून ने भी अपना चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देख लिया। नजरों से नजरें टकराईं, फिर जाने क्या हुआ कि लफ्ज बेसाख्ती में शैला के लबों से फिसलने लगे। मैंने अपने सब प्यारों को खो दिया है शमून, अब एक आप ही मेरे जीने की वजह हैं। जो भी परेशानी है शेयर कर लें, प्लीज़ ठीक हो जाएं। गहरी सांस भरकर वो शमून की सख्त नज़रों से घबरा कर बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन शमून की नज़रें वैसे ही दरवाजे पर जमी रही जहाँ कुछ देर पहले शैला खड़ी थी। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि अपने प्यारों को तुमने मेरी वजह से ही खोया है, तो मुमकिन है कि मैं जो तुम्हारे जीने की वजह हूँ, तुम मुझे ही ख़त्म करने पर तुल जाओ। दरवाजे पर नजरें जमाए शमून पुरसरार से लहजे में बुड़बुड़ाया। शमून सारा दिन कमरे में तन्हा बंद रहा, ना किसी से बात की, ना कुछ खाने पीने को मांगा। उसका रवैया सबको चौंका रहा था, लेकिन कोई भी कुछ खासत करने से कासिर था, और हकीकत जो थी वो उनके वहम गुमान में भी ना थी। रात के खाने के बाद शैला लॉन में लगे झूले में जा बैठी। उसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। कितने अफसाने मशहूर थे मेहंदी के गहरे रंग के हवाले से, सारे झूठ निकले। वो एक दिन की दुल्हन थी, कोई देखता तो यकीन न करता। बाल सुबह से संवारे नहीं थे, बस उल्टे सीधे जूड़े में समाये थे। सादा सा आसमानी रंग का सूट, परेशान किन सोचों से कमलाया हुआ चेहरा, जो कभी ना सोचा था वो सब हो रहा था और अच्छा नहीं हो रहा था। दिल में बुड़बुड़ाती हुई शैला ने चौंक कर तैमूर अफरीदी की गाड़ी को अंदर दाखिल होते देखा। अंदर से भागे आते वजदान ने गेट खोला था। तैमूर अफरीदी शाम से गायब थे, न जाने कहाँ गए थे। साथ हमजा भी था, जो गाड़ी से निकल रहा था, लेकिन कोई तीसरी शख्सियत भी उनके साथ थी, लेकिन कौन? शैला की खोजती नजरें गाड़ी के पिछली दरवाजे पर जमी थी। जब हवेली की बाकी खवातीन हजरात भी हवेली से निकल कर गाड़ी की तरफ भागे, शैला इन सब की मौजबाना अंदाज देखकर खुद भी सब खवातीन की तरह दुपट्टा सर पर लेकर हाथ बांध कर आगे बढ़ गई। गाड़ी से निकलने वाले बुजुर्ग शख्स के चेहरे पर जलाल के साथ एक खास किस्म का नूर और नरमी भी थी। शैला का सर बला इरादा ही झुक गया। बाकी सब के साथ भी यही कुछ हुआ। उन्होंने गाड़ी से निकलकर सबके सलाम का जवाब दिया, फिर अपनी रोशन आंखें चुकड़ाकर हवेली का बातूर जायजा लिया। इनके मुंह से कुछ अजनबी लफ्ज निकले, लेकिन मतलब पूछने की हिम्मत किसी से नहीं हुई। हवेली की तरफ पेशकदमी करते हुए भी उनकी नजरें हवेली का गहराई से जायजा ले रही थीं। शैला दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये बाबा जी, जो बहुत बासर लगते हैं, हवेली वालों को इन बिल्लियों नुमा बलाओं से बचा लें। जब उसकी कान में जवेरिया बेगम की सरगोशी पड़ी, जो अच्छी खासी ऊंची थी। मुखातिब तो तैमूर अफरीदी थे, लेकिन सुना सबने था, ये बाबा जी असली है ना? पहले की तरह किसी धोखेबाज को तो नहीं ले आए उठाकर? अजीम औरत, खुदारा चुप कर जाओ। तैमूर अफरीदी के भनकर कहने पर शैला समेत सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखर गई। अंदर पहुंचकर उन्होंने सबको इशारा किया कि वो इनके पीछे ना आए। फिर लॉन्ज में चक्कर काटते हुए कुछ पढ़ कर शहादत की उंगली पर फूंके और उंगली से अपने सर के ऊपर एक दो फेरे लगाते। काफ़ी देर तक ये अमल जारी रहा। सब सांस रोक के कुछ होने के मुंतज़िर थे। कोई नहीं
जानता था कि जो होना था वो हो रहा था। यानी शमून अंदर अपने कमरे में तकलीफ की शिद्दत से बेड पर लौट रहा था। वो पहले ही सख्त कमज़ोर था। इसका इरादा रात को सबके सो जाने के बाद हवेली के किसी मकीन का खून पीने का था। लेकिन ये अचानक क्या होने लगा था, शमून समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसकी ऐसी हालत पहले भी तो हुई थी, लेकिन कब? हाँ, जब वो शैला से मिला था। जहन में जब झुमका हुआ तो उसकी आंखें, जिनकी पुतलियां छोटी छोटी हो गई थी, फैल गईं। उसकी आंखों में दहशत वाज़ेह थी। यहाँ क्या कर रहा है वो आमिल? दर्द से कड़ाते हुए वो बामुश्किल बोला, मैं मर जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? शमून बेबसी से अपनी उंगलियों के पूरों से उभरते नाखून देखने लगा। फिर दांत, फिर नाक, फिर कान, हर चीज तब्दील होती गई और देखते देखते वो स्याह बिल्ला बन गया। बेड पर पड़ा शमून में ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर कीलें चुभी जा रही हों। अचानक उसके एक पंजे में, फिर दूसरे पंजे में, एक के ऊपर एक, चारों पंजों में वैसे ही लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े खुद ब खुद न जाने कहाँ से खुब गए, जैसा टुकड़ा जंगल में खुबा था। अब वो चलने के काबिल भी नहीं रहा था। साथ ही इस बार दर्द हद से सवा था। शमून अपनी घबराहट रोक नहीं सका। उसकी दहशतनाक घबराहटें सब ने सुनी थी। सबकी नजरें नीचे बने गेस्ट रूम के दरवाजे पर जम गई। यहाँ है वो, यहाँ है वो बिल्ला। उस बुजुर्ग के पुरजोश होकर कहने पर तैमूर अफरीदी और शैला ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वहां तो शमून था। शमून की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसे फिक्र सिर्फ तैमूर अफरीदी और शैला की थी। वो बेबसी की तस्वीर बना इंतजार में था कि कब इसका बरसों से छुपाया राज अफशा हो। जब कमरे की गैलरी से वो तीन स्याह बिल्लियां अंदर दाखिल हुई, फिर पल भर में इनमें से एक बिल्ला इंसानी शक्ल में ढलकर तेजी से शमून की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर गैलरी के जरिए बाहर निकल गया। धाड़ से दरवाजा खोलकर तैमूर अफरीदी और उसके साथ वो बुजुर्ग भी अंदर दाखिल हुए। शैला कमरे के बाहर ही खड़ी खौफजदा नजरों से हर तरफ का जायजा ले रही थी, जबकि हवेली के बाकी मकीन हैरत जद से इशारों के नारों में बातें कर रहे थे। शमून! तैमूर अफरीदी ने उसे पुकारा, लेकिन वो होता तो कोई जवाब आता ना। वो बुजुर्ग छोटे छोटे कदम उठाते गैलरी की तरफ बढ़े, लेकिन बाहर हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। किसी जी रूह की मौजूदगी का दूर तक नामो निशान नहीं था। जबकि तैमूर अफरीदी मुसलसल शमून को पुकारते हुए कमरे का दीवानावार जायजा ले रहे थे और शाला धड़कते दिल के साथ आयात करीमा का वर्द जेर लब शुरू कर चुकी थी। गहरी सांस भरकर वो बुजुर्ग गैलरी से पीछे हुए, फिर आंखें बंद किए थोड़ी देर तक वही नाफहम लफ्ज धीमी आवाज में दोहराते रहे, शमून कौन है? अचानक आंखें खोलकर उन्होंने सदमहरी से तैमूर अफरीदी से पूछा, जो तशवीशनाक नजरों से कमरे में नजरें दौड़ा रहे थे। शमून का गायब होना मामूली बात नहीं थी। बकूल शैला के वो कुछ देर पहले तक यहीं मौजूद था और उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि अचानक खुद से कहीं जा सकता। अब इन बुजुर्ग के सवाल से ज्यादा वो उलझे लहजे पर चौंके थे। खुश्क होठों पर जबान फेर कर उन्होंने पहले शैला को देखा, जिसका चेहरा इन्हीं की तरह सफ़ेद हो रहा था। शमून मेरा छोटा भाई है, जिसका मैंने आपको बताया था कि बिल्लियों ने हमला करके जख्मी कर दिया था। तैमूर अफरीदी घटी घटी आवाज में बोले। इनका जहन इन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकारी था। तैमूर अफरीदी के जवाब पर वो अजीब सा मुस्कुराया। क्या मुझे शमून की कोई तस्वीर मिलेगी? माफ़ कीजिएगा, शमून ने कभी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। तैमूर तैमूर अफरीदी ने पेशानी से पसीना साफ करके जवाब दिया। सुहेल और फराह के निकाह में उसकी एक तस्वीर आपने ज़बरदस्ती खिंचवाई थी तैमूर चाचू। कब से खामोश खड़े हमजा ने अचानक तंजिया कहा और फिर खुद ही तस्वीर लाने का कहकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। शैला का दिल सिकुड़ कर सिमटा। क्या होने वाला है आखिर? दिल इतने स्पीड में क्यों धड़क रहा है? दिमाग खाली खाली क्यों है? अच्छी खासी ठंड में पसीने क्यों आ रहे हैं? बहुत से सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। हमजा शमून की तस्वीर लेकर भागता हुआ आया और अजीब वलवले की कैफियत में वो तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी। वो बुजुर्ग अपने मुअक्किल के जरिए शमून की तस्वीर का सहारा लेकर कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उसकी इन्हीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तस्वीर में नजर आता शमून का सर्द सपाट चेहरा देखकर वो खुद ही ठटक गए। जंगल की वो
महीनों पहले की रात वो हरगिज नहीं भूले थे जब एक आदमखोर गैर इंसानी मखलूक इन्हें इंसानी शक्ल में नजर आई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी अमल के सहारे शमून को ख़त्म करने की, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने वो लकड़ी का टुकड़ा उसके पंजे से निकाल कर उसके अमल को नाकाम बना दिया। सारा मामला उनके समझ में आने लगा। तस्वीर हमजा को वापस लौटाते हुए उन्होंने ठंडी सांस खारिज करके तैमूर अफरीदी की तरफ देखा। तैमूर अफरीदी बहुत बार उनके आस्थाने पर आकर उनकी मिन्नत कर चुके थे, लेकिन हर बार वो मसरूफ़ होते और हवेली आने से रह जाते। आज भी वो एक ज़रूरी चिल्ला काटने वाले थे, लेकिन तैमूर अफरीदी आज इनके आगे गिड़गिड़ा कर उठे थे। शमून के लिए इनकी फिक्रमंदी और मोहब्बत यहीं से ज़ाहिर थी कि शमून पर हुए हमले ने उनका बरसों का सब्र ख़त्म कर दिया था। तैमूर, तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए यकीनन मेरी बात सुनकर सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम ही उठाओगे। खुद को मजबूत करो। उनकी तहमीयत ने तैमूर अफरीदी को ठटका दिया। मैं नहीं मानता, मेरा भाई कोई बिल्ला विल्ला नहीं है, आपको गलत फहमी हुई होगी। हो सकता है जंगल में वो बिल्ला शमून के भेस में हो। तैमूर अफरीदी मुसलसल इस सच को मानने से इनकारी हो रहे थे। उनके तो सर पर गोया पूरी हवेली आ गिरी थी इस इंफिकाश पर। हाय, मेरा सुहाग उजाड़ दिया उस बेगैरत बला ने। अरे, उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया और ये सिला मिला में खुदा गारत करे उस मनूस बिल्ले को। शमेला बेगम ने वलवला शुरू कर दिया। आखिर में फांक कर रो पड़ी। आखिर को उनके शौहर की जान ली थी उस बिल्ले ने। वो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। शमून चाचू हमेशा से हमारे साथ है, ये नामुमकिन है। वजदान बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाते बोल लगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। अगर ईमानदारी से हम हर चीज़ पर गौर करें तो ये मुमकिन नज़र आता है। जब कभी हवेली वालों पर हमला हुआ है वो शख्स हवेली से गायब रहा है। तैमूर और चाचू की फैमिली को छोड़कर हवेली की हर फैमिली ने इस बला का इक़्ताब सहाया है। हमजा सबसे ज़्यादा भीड़ा रहा था। हानिया का मासूम चेहरा मुसलसल नज़रों के आगे चकरा रहा था। उसके उठाए गए पॉइंट काबिल गौर थे। फिर सबसे बड़ी बात, अचानक शमून का गायब हो जाना। लॉन्च में बहस जारी थी। किसी को फ़ौरन यकीन आ गया था, कोई अब भी बेयकीन था, कोई दलाल दे रहा था, कोई इतराफ़ उठा रहा था। और गुमसुम सी सबकी तकार सुनती शैला चुपचाप उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसका रुख तूबा के कमरे की तरफ था। रास्ते में पड़ने वाले शमून के कमरे के दरवाजे पर वो कुछ लम्हों के लिए रुक गई थी, फिर झलमलाई नजरें लिए सर झटक कर कदम आगे बढ़ा दिए। शैला को तूबा का इस दिन का रवैया याद आ रहा था। शमून के नज़दीक आने पर वो जिस तरह चीखने लगी थी और भी बहुत सी मशकूक कर देने वाले मनाजिर भी जहन के पर्दे पर चकराने लगे। दिमाग के बंद दरवाजे खुलते जा रहे थे। बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा था। गहरी सांस भरकर उसने तूबा के करीब जाकर पुकारा, लेकिन जवाब न दीदा। तूबा! शैला को उसके बेसुध अंदाज ने ठटका दिया। उसका दिल बंद होने लगा। तूबा, प्लीज़ उठें, बात करनी है मुझे आपसे। मुझे बताएं, क्या शमून है वो बिल्ला? तूबा, प्लीज़ उठें, बताएं। तूबा, प्लीज़ आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको? तूबा! शैला की अगली पुकार हलक में ही घुट गई। बिल्लियों के घराने की खरीदा आवाज़ ने उसे छटका दिया। तेजी से वो बेड से दूर हुई थी, क्योंकि तूबा जो हलाफ सरपाता ओढ़े लेटी थी, आवाज़ उसी हलाफ में से आ रही थी। और आप अंदर से दो तीन वजूद हिलते भी दिखने लगे। वो वजूद किन के थे शैला को समझने में मुश्किल नहीं हुई। वो दबे पांव उल्टे कदमों पीछे होने लगी जब तेज आवाज़ों के साथ चार बिल्लियां छलांगे लगाकर हलाफ से निकली। इनकी छलांगों की वजह से तूबा का हलाफ उस पर से हट गया और तूबा का चीर फाड़ा वजूद देखकर शैला के हलक से वो चीखें निकली कि नीचे लॉन्च में बैठे सब लोग ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। वो बुजुर्ग जो जानने की तैयारी में उठ खड़े हुए थे, सब के साथ ही हो लिए। शैला की चीखें रुक ही नहीं रही थी, ना नजरें तूबा के वजूद से हट रही थी। वो चारों बिल्लियां शैला को घूरती हुई खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूद गई और शैला यूं ही चीखते चीखते होश हवास से बेगाना हो गई। जंगल से गुजरकर बस्ती की तरफ बढ़ते हुए उसका चेहरा जरूर से ज्यादा सख्त था। यूं लगता था वो अंदर ही अंदर खुद से कोई जंग लड़ रहा हो। स्याह आंखों के आगे बाबा शैला का वो खौफजदा अंदाज लहरा रहा था जब वो तूबा के कमरे में उसे देखकर पीछे हो रही थी, लेकिन उसका कसूर नहीं था। वो भूख और कमजोरी से नढाल था। तूबा के जिंदा रहने से किसी को फायदा ही क्या था। सो जो ही उस आमिल ने अपना अमल दरमियान में रोका, शमून अपने साथियों समेत तूबा के कमरे में घुस गया और मट्टा
डाली अपनी भूख और प्यास। लेकिन शैला या बाकी हवेली वाले कभी ये नहीं समझ सकते थे। जैसे एक आम इंसान पर शदीद भूख में हराम भी हलाल हो जाता है, वैसी वो भी मजबूर हो जाता था। अगर उसके नसीब में यही ग़ज़ा लिख दी गई थी तो वो क्या कर सकता था? वो कोई आम इंसान नहीं था, कोई और मखलूक था। तो क्या इसमें इसका कोई कसूर था? कोई नहीं समझने वाला था उसके एहसासात। हवेली वाले तो दूर, उस पर जान निछावर करने वाले तैमूर अफरीदी और उसकी प्यारी शैला, कोई भी तो नहीं समझने वाला था उसे। वो बस एक अफरियत था, एक खूनखार गैर इंसानी मखलूक। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसमें कोई एहसासात नहीं थे। अगर एहसासात ना होते तो क्या वो शैला से मोहब्बत करता? भला एहसास बगैर भी कोई मोहब्बत करता है? ये इंसान होते हैं जिनकी हौस कभी ख़त्म नहीं होती। वो तो भरे पेट के साथ कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं था, अगर सामने वाले से दुश्मनी ना होती तो। लेकिन उसकी बातें समझेगा कौन? चलो कोई ना समझे, लेकिन शैला सोचों के धारे से निकलकर शमून ने बस्ती की हदूद में कदम रख दिए और इंसानी नज़रों से ओझल हो गया। शमून की बस्ती ही नहीं, बस्ती की हदूद में दाखिल होने वाले भी इंसानी नज़रों से ओझल हो जाते थे। लेकिन जब कोई आम इंसान गलती से इनकी दुनिया की हदूद की तरफ कदम बढ़ाता तो तमाम कबीले वालों से खौफजदा करके जंगल से भागने पर मजबूर कर देते। इंसानी दुनिया में ये जंगल असेब जद मशहूर हो चुका था। शमून शमून जब उस छोटी सी गार में बिल्ले के रूम में दाखिल हुआ, शाकुपा को अपना मुंतजिर पाया। शमून खामोशी से उनके सामने बैठ गया, सर भी झुका दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में कई सवालात हैं, जब मैं सबसे बड़ा सवाल जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हारी मदद करके तुम्हें उस अल्लाह वाले बंदे से क्यों बचाया गया। तो इसका जवाब यह है कि तुम हमारे मुजरिम हो, तुम्हें सज़ा देने का या माफ़ करने का हक भी हम ही रखते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि तुम अकेले नहीं हो, एक तुम इसके काबू में चले गए तो हमारे पूरे कबीले की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना तुम? जी, शमू ने सर झुकाए झुकाए ही धीमी आवाज में कहा। कुछ और पूछना चाहते हो? शाकूपा ने बतूर उसका चेहरा देखकर पूछा। शमू ने जवाबन कलब से सर उठाकर उसे देखा। जब इंसान के साथ दूसरी मखलूक रिश्ता नहीं बना सकती तो इन्हें इंसान से मोहब्बत क्यों होती है? शाकुपा उस सवाल पर चुप सा रह गया। न कहीं ना कहीं शाकुपा को अंदाजा था शमून इससे सही कोई सवाल पूछेगा। ये मामला तो तमाम मखलूक को बनाने वाला ही जानने या उसके ख़ास बंदे। हम बस अपनी हकीकत जानते हैं, हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और इंसान से मोहब्बत हम नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि ये उस इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदेह है। शाकुपा का अंदाज खुद नरम था। वो अब इवाना के कत्ल की वजह से शमून से खफा भी नहीं लग रहा था। शकुपा शमून के ख़ानदान की हमेशा से ग़ुलामी करता आ रहा था, शायद इसलिए भी वो शमून को मौका देना चाहता था। वो पुराने नज़रियात का हामी था। शकुपा की ख्वाहिश थी शमून सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए बस्ती में बस जाए और सरदारी करे। शमून कुछ देर तक संजीदगी से शकुपा के झुर्रियों भरे लटकती हुई स्याह जिल्द वाले चेहरे को घूरता रहा, फिर हतमी लहजे में बोला, मैंने शैला के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझसे सरदारी ले ली जाए, लेकिन मुझे शैला को यहाँ लाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मेरा अब हवेली में रहना नामुमकिन है और शैला के बगैर रहना भी मुमकिन नहीं। शाकुपा, मुझे वो चाहिए, जान के अलावा जो चाहे आप मुझसे ले बदले में, क्योंकि जान नहीं होगी तो शैला के साथ जीऊँगा कैसे? आखिर में शमून ज़रा सा मुस्कुरा दिया। शाकुपा ने अफसोस से सर हिलाया, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर संजीदगी से पूछने लगा, शमून, तुम्हें शैला से कुछ नहीं मिल सकता? हाँ, तुम जानते हो तुम्हारे खमीर में आग भी शामिल है और ये आग किसी इंसान की जान ले सकती है, तो और तुम उसकी जान लोगे नहीं, फिर क्यों पीछे पड़े हो उसके? छोड़ दो उसे, अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हो। नहीं शाकुपा, नहीं। शमून उसकी बात काट कर दहाड़ा, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, मैं उसे देखकर ही खुश हूँ, लेकिन दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरी बीवी है, उस शादी की कोई अहमियत नहीं। शाकुपा उसकी उस अब की बात झुठलाया।
मेरी नज़र में है, मैं अपनी माँ पर पड़ा हूँ तो क्या हुआ, मैं एक आदम ज़ाद की औलाद हूँ, फिर कैसे नहीं इस निकाह की अहमियत। शाकुपा को बलाखिर अंदाज़ा हो गया कि वो बेकार में इससे बहस कर रहा है। शमून कभी नहीं समझेगा, जब कोई और मखलूक इंसान पर आशिक होती है वो इश्क फिर सबसे ख़तरनाक इश्क होता है, जहाँ से वापसी आलमों के झाड़ू खाने खाए बगैर मुमकिन नहीं। और शाकुपा ज़ाहिर से किसी आमिल से बातचीत करके अपनी और कबीले की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब जो करना था उसे खुद ही करना था। लेकिन क्या? शाकुपा ने शमूर को जाकर आराम करने की हिदायत की, क्योंकि वो जितना जख्मी था इस हिसाब से उसने खून बहुत कम मिकदार में पिया था, सो इस वक्त भी वो कमज़ोर सा लग रहा था। बस्ती में रहते हुए शमूर को 4 रोज़ गुजर चुके थे। इस वक्त इंसानी दुनिया में गहरी रात का समा था, जबकि बस्ती वालों का गोया दिन शुरू हुआ था। शाकुपा नहर से पानी पी रहा था जब शमून उसके करीब जा खड़ा हुआ। शाकुपा ने सवालिया नजरों से उसे देखा जो इतने इंसानी रूप में ढिला खड़ा था। शकुपा भी इंसानी शक्ल में ढल कर उसके मुकाबले हुआ। बहुत सब्र कर लिया मैंने, अब और नहीं, मैं शैला से मिलने जा रहा हूँ। शमून जबड़े भेज कर बोला, कोई फायदा नहीं, मुझे मालूमात मिली है कि उस आमिर ने एक खास हारिस हवेली के गिर्द खींचा है। हम समेत कोई बला बिल्ला इस हारस को पार नहीं कर सकती। और साथ ही वो शैला के गले में कोई अस्म शरीफ डाल गया है। वो हवेली से बाहर भी निकल आए तब भी तुम उसके साय तक भी नहीं पहुंच सकते। शाकुपा को इंकशाश ने शमून को कुछ लम्हों के लिए साख्त कर दिया और फिर वो गुस्से की ज्यादती से कांप उठा। देखता हूँ किसकी मजाल है कि मुझे शैला के करीब जाने से रोके। अब पहले इस आमिर को ठिकाने लगाना होगा। शमून मुट्ठियां भेजे आगे के प्लान सोचने लगा जब शाकुपा खौफ से बोला, एक बार नहीं 2 बार तुम मरने के करीब पहुंच गए थे, फिर भी इस आलम की काबिलियत पर शक है तुम्हें। वो दूर से तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर लेगा। आजकल वो तुम्हारे ही पीछे चिल्ले काट रहा है। ऐसे में बस्ती से निकलना खतरे से खाली नहीं। तुमने शायद गौर नहीं किया, कोई भी बस्ती से बाहर नहीं जा रहा। शिकार को खुद ही बस्ती की तरफ मुतवज्जो करके गजा का इंतजाम किया जा रहा है। शाकुपा सख्ती से कहकर जाने लगा, लेकिन अगले ही पल चौंक कर मुड़ा। शमून नहर में उतर रहा था। इंसानी रूप में होने की वजह से वह नहर में डूब नहीं रहा था। नहर के दूसरी तरफ से इंसानी दुनिया की हदूद शुरू हो जाती थी और शमून दूसरी तरफ जा रहा था। एक बात याद रखना, जिंदा लौट आए तो ठीक, लेकिन इस बार कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि इस बार सवाल सारे कबीले की जिंदगी का है। चांद की दुधिया रोशनी में जगमगाता स्याह पानी चीर कर आगे बढ़ता शमून लम्हे भर को रुका, फिर बगैर मुड़े सर साबत में हिलाकर आगे बढ़ गया। नहर के दूसरी और सारा कबीला शमून को यूं गुमसुम होकर देख रहा था जैसे आखिरी बार देख रहा हो। तूबा का सौम भी हो चुका था, हवेली वालों के चेहरे पथरीले हो चुके थे। ये एहसास सबको तड़पा रहा था कि इनके प्यारों की कातिल वो खूनी भला इनके दरमियान थी और वो अनजान बैठे रहे। तैमूर अफरीदी को किसी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिल में खुद को सबका मुजरिम समझते हुए नजरें झुकाए फिर रहे थे। ये सच था कि अब भी वो शमून से नफरत नहीं कर पा रहे थे। मोहब्बत जो कदर कर ली थी, अब नफरत नामुमकिन थी। लेकिन उनका दिल खौफ और दुख से बोझल था। उनके कितने ही प्यारों की कैसी उजड़ी पिजड़ी लाशें उन्होंने उठाई थी। और तूबा, वो तो कितनी मासूम और बेज़र थी, उसे भी ना छोड़ा। क्या था आखिर, क्या था अगर शमून हवेली वालों की जान ना लेता? शायद उनके दिल की हालत इतनी ख़राब ना होती, शायद उनका मान इतनी बुरी तरह ना टूटता। शायद तैमूर अफरीदी ने शमून की इकलौती तस्वीर को लाइटर के इस छोटे से नारजी गोले की नज़र कर दिया। इसके अलावा वो कर ही क्या सकते थे? मामला किसी इंसान का नहीं था जो वो शमून की खोज करते, अब आलिम से ही उम्मीदें थी। ये था तैमूर अफरीदी की तरफ का किस्सा। और अब रह गई शैला। तो शैला अब वही पहले वाली शैला बन चुकी थी जो बिल्कुल बेसहारा थी, जिसे तैमूर अफरीदी ने अपनी रहमदिली के हाथों मजबूर होकर हवेली में पनाह दी थी, जिसका हवेली पर कोई हक नहीं था। थहमी सहमी गेस्ट रूम में रहायश पजीर वो बेसहारा लड़की जो हवेली वालों की कारदार नज़रों की जिद में रहती
تھی۔ پہلے لڑکیاں وغیرہ سے ہمدردی تو رکھتی تھی، اب تو بالکل ہی کترائی پھرتی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر شیلا نے رو رو کر سوج جانے والی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے میں گیلری میں کھڑی اپنے نصیب کی حیرت انگیز کھیل پر حیران تھی۔ اس کا سب کچھ چھین لینے والی خون آشم بلا بقول عامل بابا کے اس پر عاشق ہو چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ خود اس بلا سے نکاح بھی کر چکی تھی اس پورے ہوش و حواس میں۔ اب نہ جانے آگے زندگی اسے اپنے کون کون سے نرالے رنگ دکھانے والی تھی۔ شیلا انہی سوچوں میں تھی جب اسے گیلری میں کھڑے کھڑے دور روڈ پر ایک ہولا بھاگتا نظر آیا۔ شیلا نے خوف زدہ ہو کر غور کیا تو وہ بہت بڑے سائز کا سرخ آنکھوں والا بلا تھا جس کی آنکھوں کی چمک دور سے بھی واضح تھی۔ شیلا نے چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے کیونکہ وہ بلا حویلی کے گیٹ کے نزدیک آ کر رک گیا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ دور سے بھی شیلا اندازہ لگا گئی تھی وہ کوئی اور نہیں اس کا مجرم، اس کا محرم ایک بلا تھا جو وہ شمعون تھا۔ شمعون ایک اٹک دور نظر آتی شیلا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تیز تھیں سو وہ شیلا کی نسبت فاصلے کے باوجود اسے واضح دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بے اختیاری میں حویلی کی حدود میں قدم بڑھائے لیکن اگلی ہی پل اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ جان لیوا سا کرنٹ تھا جو سارے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ شمعون کا دل جیسے 2 پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ حارث بہت سخت معلوم ہوتا تھا۔ حویلی کی دہلیز پر ناگوار گھوری ڈال کر شمعون نے پھر گیلری کی طرف دیکھا لیکن اب وہاں شیلا موجود نہیں تھی۔ شمعون کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے لگا تھا شیلا اسے ایک موقع دے گی، اس کی بات سنے گی اور شاید سمجھے گی بھی، لیکن وہ تو اب اس کی آنکھوں میں غصہ و بے بسی واضح تھی۔ مختلف جذبات میں ایک ساتھ گرا وہ اچانک حلق کے بل دھاڑا تھا۔ شیلا جو اپنی آنکھوں سے ایک بلے کو ایک انسان کے روپ میں بدلتا دیکھ کر دہشت زد سی ہوتی کمرے میں بھاگ آئی تھی اور گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ شمعون کی لہز دینے والی دھاڑ پر ہوش میں آتی بے اختیار چیخ پڑی تھی تو وقت آ چکا تھا نہ جانے اس کی زندگی کے کتاب کے بند ہونے کا یا کوئی نیا باب شروع ہونے کا، یا ہو سکتا ہے یہ شمعون کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آخری خیال کے آتے ساتھ ہی شیلا کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ کمال تھا جس حیوان نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اس حیوان کی موت کا خیال اس کا دل بند کر گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ حیوان اپنے انسانی روپ میں اس پر بہت مہربان رہا تھا۔ جانے ان کی نکاح کی کوئی حقیقت تھی یا نہیں، لیکن شیلا نے تو مکمل ہوش و حواس میں قبول کیا تھا اسے، جو بھی کیا تھا جیسے بھی کیا تھا، سو اس کے جذبات بھی وہی تھے جو کسی بھی عام لڑکی کے ایسی سوچ پر ہو سکتے تھے۔ شیلا کا دل ایک پل کے لیے نرم ہوا تھا لیکن فقط ایک پل کے لیے، پھر نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کے چہرے لہرانے لگے جو اس حیوان کی خوفناک بھوک کا نشانہ بن گئے تھے۔ اف، اس صبح کا مناظر کتنا ہیبت ناک تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم کزن ناصر کو تو گویا پالا ہی اس نے تھا، اور معصوم سی چھوٹی سی سب کا خیال رکھنے والی ہانیہ، وہ خود سے بھی بیگانہ توبہ، سب کا کیا قصور تھا آخر؟ اگلے ہی پل شیلا کا دل ہی نہیں چہرہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کیا کروں کیا نہ کروں کی سوچ میں تھی جب دروازے پر زوردار سی دستک ہوئی، ساتھ ہی تیمور افریدی کی پریشان سی پکاریں بھی جاری تھیں۔ شیلا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تیمور افریدی کے پیچھے وجدان، امتل، نازیہ اور حمزہ بھی موجود تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا شمعون آیا ہے، اس کی داڑھ سن کر میں ڈر گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے کہتے ہوئے تیمور افریدی گیلری میں چلے گئے، لیکن اب گیٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تیمور افریدی نے اپنی پریشانی سے پسینہ صاف کیا۔ خدا جانے اب کہاں چلا گیا تھا وہ، اتنی جلدی ہار مان کر تو یقیناً نہیں جا سکتا تھا، آخر کہاں چلا گیا وہ؟ حمزہ نے غصے سے بھیڑ کر تیمور افریدی سے یوں پوچھا جیسے تیمور افریدی نے شمعون کو چھپایا ہو۔ وجدان نے حمزہ کا بازو پکڑ کر ناگواری سے جھٹکا
آئندہ چاچو سے اس طرح بات مت کرنا حمزہ، تم نے ہی نہیں میں نے بھی نقصان اٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے اوور ہو جاؤ۔ ہماری طرح چاچو بھی لا علم ہی تھے، لیکن ان کے دل میں پھوٹتے رہتے تھے نا اس شیطان کی ہمدردی کے سوتے۔ جب کبھی اس نے بچپن میں ہمیں تکلیف پہنچائی یہ اس کی ڈھال بن جاتے تھے، ہم نظر ہی نہیں آتے تھے، اب بھگتے ہیں۔ حمزہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وجدان خوف زدہ ہو کر گیلری سے نکل گیا۔ حمزہ کا پارا ہمیشہ سے ہی ہائی تھا، اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تیمور افریدی حمزہ کی مزید جلی کٹی سنتے لب کچلتے ہوئے سنسان اندھیری روڈ پر اپنی نیم نظریں دوڑانے لگے۔ امطل اور نازیہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ پیچھے کھڑی شیلا کچھ نہ کر کے بھی چور سی بن گئی تھی۔ ایک تکلیف دہ جھٹکے سے شمعون کی سیاہ آنکھیں کھلی اور پھر کھلتی ہی چلی گئیں۔ حیرت سے شمعون اپنے جسم کے گرد لپٹی اس موٹی سی زنجیر کو دیکھ رہا تھا جس میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ آگ کی گرمائش کا اسے احساس تو ہو رہا تھا، لیکن یہ آگ اسے فی الحال نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ شمعون نے آس پاس نظریں دوڑائی، آس پاس صرف اندھیرا تھا، اسے اپنے وجود کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شمعون کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ ابھی ایک لمحے پہلے ہی تو وہ حویلی کے باہر موجود تھا، شیلا کی بے رخی سے دل برداشتہ وہ حویلی میں جانے کی یا شیلا کو حویلی سے بلوانے کی کوئی تدبیر سوچ رہا تھا جب اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر وہ یہاں موجود تھا۔ کون ہے؟ کس کی مجال ہے یہ؟ اگر تو وہی عامل ہے تو سن، میں کچھ نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو اپنی بستی میں لے جانا چاہتا ہوں بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جانے دے، شمعون چیخ کر بولا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جواب ملنے کا انتظار کیا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تب پھر سے چلایا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا میرے قبیلے کے لوگ پوری حویلی کو ختم کر دیں گے، تو شاید جانتا نہیں میں قبیلے کا سردار ہوں۔ شمعون نے اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر کسی جواب کا انتظار کیا، لیکن اب بھی ہر طرف خاموشی ہی رہی۔ شمعون کا غصے سے حال برا تھا، نہ جانے یہ کیسی زنجیر تھی، اس کی ساری طاقتیں بیکار جا رہی تھیں۔ کیوں چھپ کر بیٹھا ہے؟ بڑا نیک اور با اثر بنتا ہے، اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے آئے، سامنے آ، اگر مقابلے کی ہمت ہے تو۔ اگر مقابلے کی ہمت ہوتی تو مجھے یوں بے بس نہ کرتا۔ خود کو اس زنجیر سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شمعون کا غصہ عروج پر تھا۔ انسان واقعی اشرف المخلوقات تھا، اس کی جگہ کوئی باشعور انسان ہوتا تو کیا محبت میں اتنا بے وقوفانہ قدم اٹھاتا؟ یقیناً نہیں، لیکن وہ اٹھا چکا تھا اور اب بھگت رہا تھا۔ زنجیروں سے نکلتی آگ کی تپش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ شمعون کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زنجیر اس کے گوشت میں دھیرے دھیرے دھس رہی ہو، اس کا گوشت گل رہا تھا، اپنی طرز کا سلو پوائزن کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ بالکل ٹھیک کہا، ایک جانی پہچانی آواز اچانک گونجی، ساتھ ہی اندھیرے کمرے میں انسانی وجود سے مشابہت آگ بڑھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ ایک کڑھیدہ صورت بوڑھے شخص کا روپ دھار گئی۔ اس کے سر پر بال نام کو نہیں تھے، لیکن ایک عجیب سا شیطانی شکل کا نشان سر پر بندھا تھا۔ اس کڑھیدہ صورت شخص کے دانت انسانی دانتوں کے سائز کے ہی تھے، لیکن آخر میں جا کر نوکیلے ہو جاتے تھے۔ کوئلے سی رنگت والے چہرے پر خوب سی پھنکار برس رہی تھی۔ سیاہ لباس میں کھڑا وہ دانت نخستہ شخص نہ جانے کون تھا؟ شمعون چونک گیا۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ اس شخص کی نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ خیموں، کہاں چھپا ہے تو غدار؟ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ؟ شمعون کی چیخ اس بار اتنی اونچی نہیں تھی کیونکہ وہ سخت حیرت میں مدبہ تھا۔ خیموں اس کے قبیلے کا ایک عام سا فرد تھا، سوائے سرداری پر وقتی رنجش کے ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بڑی جلدی پہچانا خیموں اچانک شمعون کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب منہ کر کے بولا۔ سامنے کھڑا آگ کی صورت آنے والا شخص کہکے لگانے لگا، دماغ کی دنیا ہلا دینے والا کہکا تھا۔ ہاں واقعی تجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں، میں مان گیا جب ہی اس شیطان کے چیلے کو ساتھ ملایا ہے، اور دیکھ اب تو کتنا بے بس ہے۔ کہیں سے لگ رہا ہے سردار،
ہاں ہاں ہاں، وہ کیا پوچھ رہا تھا تو؟ یہ کون ہے؟ یہ شیطان کا پجاری ہے اور تیرے ہونے والا آقا بھی، اور میں ہوں خیمو، قبیلے کا ہونے والا سردار۔ خیمو اپنی بات ختم کر کے شیطان صرف شخص کے ساتھ ہنسنے لگا، جبکہ شمعون تکلیف سے کڑھانے لگا۔ زنجیر کی تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔